Hi children, so here is our electrochemical cell. I have already given you introduction there. Here in a very short note we are going to explain the contents. In the contents what are there? Definition, components, types and what is exactly voltaic and galvanic cell and electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंटेंट्स में हमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी. फाइन. Now let's proceed to the next slide, the definition of the electrochemical cell. Very simple, as the name indicates, electrochemical cell. I have already told you means electrical energy and chemical energy. When electrical energy is converted into chemical energy or chemical energy is converted into electrical energy, that is simple electrochemical cell. Fine. This is the definition. You can easily get a note on your copy. Take a pen and copy. And I am giving the example also. Here I am having the components. What are exactly components? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके components भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. So what are the list है? In the components means electrochemical cell को बनाने में हमें किन किन चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है. What are essential needs? The first one is 2 half cells, second one is 2 metal electrode, third one is 1 voltmeter and next is 1 salt bridge जो दोनों apparatus को join करेगा and next is last one 2 aqueous solution of each half cell. मीन्स 2 apparatus हमने लिए हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे तराजू होता है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं. ऐसी हैंड में हमें 2 apparatus आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि हमने 2 हैंड्स में हमने apparatus लिया हुआ है और उन दोनों apparatus को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज. With the help of salt bridge. Fine. Next is this half cell. What is that? So it is very important to understand. Half cell is a voltaic cell, also known as galvanic cell. That is an electrochemical cell that uses spontaneous redox reaction to generate electricity. Spontaneous redox reaction का मतलब, spontaneous का मतलब होता है very fast and redox reaction मतलब reduction and oxidation. मतलब एक ऐसा रिएक्शन होगा, ये देखिए 2 बीकर्स लिए हुए हैं, इन दोनों बीकर्स को ज्वाइन किया गया है सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से. दिस वन इज़ द सॉल्ट ब्रिज. Fine. And these are the metal electrodes. First one is zinc electrode and second one is here copper electrode. I have shown you here. These are the 2 electrodes और इन दोनों electrodes को मैंने salt bridge से कनेक्ट कर दिया है. इस रिएक्शन, इस पूरे apparatus हाफ सेल में क्या होगा? redox रिएक्शन होगा. redox रिएक्शन का मतलब जिसमें रिडक्शन भी होगा और जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा. वेरी सिंपल. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है? इट्स वेरी इजी. जब H आइंस, पॉजिटिव आइंस जब हम लूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन. मीन्स H आइंस हमारा जा रहा है, लूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन मीन्स जब हम गेन कर रहे हैं, जब H आइंस को हम गेन करते हैं, दैट इज़ द reduction. A half cell is composed of an electrode, a stripe of metal within a solution containing n plus ion in which m is an arbitrary metal. A salt bridge is also connected to the half cell. ये half cell का पूरा पिक्टोरिक डायग्राम मैंने लिया है आप लोगों के लिए. इसे अपनी कॉपी में क्विकली ड्रॉ कर लीजिए एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, आप सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे, एक साइड में जिंक इलेक्ट्रोड बनाएंगे एंड साइड में कॉपर इलेक्ट्रोड बनाएंगे. और यहाँ पे देखिए जिंक में ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे रिडक्शन होता है. बहुत सिंपल है. यहाँ पे जिंक आइंस हैं Zn+2, यहाँ पे कॉपर आइंस हैं. फाइन. सो दिस इज़ द हाफ सेल. एक डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. 2 metal electrodes. Electrochemical cells have 2 conductive electrodes.
दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं। एक चीज़ बहुत सिंपल ध्यान रखिए, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे हम बोलेंगे एनोड है, एंड जो रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे हम बोलेंगे कैथोड है। द एनोड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स। देखिए इस डेफिनेशन में भी सेम पॉइंट लिखा है जो मैंने आपको बताया। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स आपने लेनी है, वेरी सिंपल। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट ये है कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। इन अ वेरी सिंपल वे मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है पूरे पिक्टोरिक फॉर्म में, आप लोगों की हेल्प के लिए। दैट इज़ द कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि कैथोड पे हम पॉजिटिव साइन रखेंगे और एनोड पे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। ऑक्सीडेशन में मैंने बताया है कि जो H आइंस जब लूज़ हो जाते हैं उसको बोलते हैं एनोड, इसलिए जब हम कोई चीज़ लूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द नेगेटिव साइन, और रिडक्शन पे हम गेन कर रहे हैं दैट इज़ द कैथोड, वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। और एनोड वाले पॉइंट पे ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड वाले पॉइंट पे हमेशा रिडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं आउट ऑफ द एनोड, और इलेक्ट्रॉन्स कैथोड में क्या होंगे, मूव इनटू द कैथोड। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ से किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि एनोड जो है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ। फाइन। सो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोड के, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, किस एनोड पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी इस पीपीटी में एक्सप्लेन करी हैं, आपको बता भी दी हैं। काइंडली गो थ्रू विद इट, इट इज़ वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। नेक्स्ट इज़ वोल्टामीटर। बहुत सिंपल है। जैसे हम नॉर्मली जो हमारे पास मोटर्स वगैरह होती हैं, हमारी सिंपल कार का आप एग्जांपल ले लीजिए, कार में भी एक तरीके से मीटर रीडिंग का मोटर लगा होता है ना। द वोल्टामीटर इज़ सिंपली, नॉर्मली क्लास 12th के बच्चे जब फिज़िक्स लैब में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वोल्टामीटर के इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं जिससे आप मेज़रमेंट कर सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। जहाँ से हम मेज़रमेंट करते हैं दैट इज़ सिंपली अ वोल्टामीटर। फाइन। वोल्टामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को। सॉल्ट ब्रिज, ये भी मैंने आपको बताया है। इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। देखिए इसमें दो बीकर्स लिए हैं, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको। 2 बीकर्स लेंगे, एक बीकर में एनोड होगा, दोनों में इलेक्ट्रोड्स डाली गई हैं। देखिए ये जो रॉड होती है ना इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक में, दोनों में सॉल्यूशंस लिए जाते हैं। एक बीकर में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे बीकर में रिडक्शन होता है, ठीक है। एक बीकर में मैंने यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है, दूसरे बीकर में मैंने जिंक सल्फेट सोल्यूशन डाला है, और ऊपर इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से, देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। और इनके कैथोड और एनोड इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफ़र होंगे, मैंने बोला ना इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उस कंटेंट को मेज़र करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। हेयर आई हैव टेकन वन इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर। तो दिस इज़ द फुल प्रोसेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर सॉल्ट ब्रिज का कंटेंट आपके एग्ज़ाम में आता है, प्रॉपर आपको एज इट इज़ सेम ये पिक्चर बनानी है, और इस पिक्चर को बनाने के बाद आपको ये थ्योरेटिकल कंटेंट लिखना है। फाइन। ये थ्योरी आपको ज़रूर 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 आएगी। इट इज़ वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फाइन।